आप सब ने मेरे अब्बू को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखना है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जान रहे खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो चलो जी आइयो अज का व्लॉग शुरू करते हैं। मॉर्निंग का टाइम तो कोई नहीं है, शाम का बल्कि आफ्टरनून का ही टाइम है। आफ्टरनून के टाइम ही मैं कुकिंग स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मेरे अब्बू का खत्म से सालाना। तो मैं क्या चलो जी खाना बनाने अपने हाथ ना बनाने और मेरे दिल ਨੂੰ बहुत सुकून मिलेगा। ਇਹ दिन काफ़ी तकलीफ दे तो होंगे ही है क्योंकि वो दिन याद आ रहा होंगे जो ਤੁਹਾਡੇ अपने ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਸਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੈਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਖਤਮ ਸੀ ਔਰ ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਦੇ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਲਾਨਾ, ਕੁਛ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਛੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਖਤਮ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਅਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਦਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਔਰ ਖ਼ਤਮ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਥ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੜਾ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਮ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਤਮ ਦਿਲਾਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਖ਼ਤਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ 'ਚ ਬਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੋਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬ ਮਿਰਾਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਦ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਈਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇਬਰ ਸਭ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਜੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੀ ਨੇਬਰ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ भी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी और मुझे मस्जिद भी जाना था। रोज़ मैं जाती थी क्योंकि 4-5 दिन आप लोगों ने उधर ही बैठ के गिटके वगैरह पढ़नी होती थी। बीच में जी मैंने इसमें 4-3 घंटे निकाले। मैंने कहा जी नहीं, इन्हीं दिनों में मैं ख़त्म दिला देती हूँ क्योंकि यही दिन है मेरे अब्बू की वफ़ात के, तो फिर बाद में क्या फ़ायदा। तो फिर मैंने जी देगी पुलाव बनाना था, साथ में बनाने थे जी मीठे चावल। अगर खीर बनाती ना तो बड़ी देर हो जानी सी और मुझे मस्जिद में भी जाना था पढ़ने के लिए। और अच्छा यहाँ पे ना मैंने अपने अब्बू के लिए कुछ लाइंस याद की हैं, तो उन सब वालिद के लिए जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो मेरी इस तकलीफ़ को और मेरे इस एहसास को ज़रूर महसूस करेंगी। सब भैना ते चलो जी और सब भरा। और यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के सारे दुख, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभने देते। अब्बू मुझे छोड़ कर गए तो ज़माने ने बताया कि जब बेटियों का और जिन बेटियों का बाप नहीं ना होता उनका कोई हमदर्द नहीं होता, चाहे कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो, मगर घर का सबसे मजबूत सतून बाप ही होता है। बाप की मौजूदगी सूरज की मांदिद होती है। सूरज गर्म ज़रूर होता है मगर सूरज ना हो तो अंधेरा भी छा जाता है। माँ की खिदमत से जन्नत तो मिल जाती है मगर जन्नत का जो दरवाज़ा उस वक्त खुलना है जब बाप की इज़्ज़त की जाएगी। कसम खुदा की मैंने अपने बाप जैसा शख्स दुनिया में नहीं देखा। जेब खाली भी होती है लेकिन फिर भी उनके लफ्ज़ यही कहते हैं, बेटा कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं। और हम लोग ऐसे अपने आप को सेफ फील करते हैं ना अपने बाप के घर में कि बस सब कुछ दुनिया एक तरफ और बाप का घर एक तरफ। बाप एक ऐसा शख्स, ऐसा इंसान जिनके साए में बेटियां हमेशा राज करती हैं और बेटियां अपने आप को बड़ा सेफ फील करती हैं अपने बाप के घर में और बड़ी लाडली होती हैं बेटियां अपने माँ बाप की, बल्कि स्पेशली बाप की। बाप बेटियों का एक ऐसा दोस्त होता है जिनसे वो कभी भी कुछ भी मांग सकती हैं,
कुछ भी कह सकती हैं, बाकी जगहों पे उनको 100 दफ़ा सोचना पड़ता है। तो इसलिए बाप जो है ना हमारे लिए बहुत 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 प्यार करने वाला रिश्ता है। माँ भी है, बाप भी है, इसलिए माँ बाप दोनों की खिदमत करें, दोनों का एहसास करें, दोनों से प्यार करें और उनकी दुआएं होंगी तो दुनिया में आप कामयाब होंगे। इसलिए बाप की कदर करें। हमसे पूछे जिनकी शफ़क़त इस दुनिया से जा चुकी है, जिनकी शफ़क़त का हाथ हमारे सर पर नहीं है बाप का, अल्लाह ताला सबके वालिद जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत करे और मेरे अब्बू की भी मग़फ़िरत करे और मेरे भाई की भी। आमीन सुम आमीन। तो चलो जी, अज पक गया देगी पुलाव, क्योंकि मेरे अब्बू ਨੂੰ पुलाव और जरदा बहुत ज़्यादा पसंद सी। और मिक्स करके ना दोनों खाते होंगे सी, बहुत उन्होंने पसंद सी। और साथ में उनको पसंद होता था हर सब्ज़ी में गोश्त ऐड होना चाहिए। गोभी गोश्त हो, पालक गोश्त हो, शलजम गोश्त हो, जो मर्ज़ी सब्ज़ी हो उसमें गोश्त डलना चाहिए। और मेरे अब्बू को गोश्त वाली चीज़ें बड़ी पसंद थी। और मैंने बनाना था गोभी गोश्त, मेन्यू में था, लेकिन मुझे मस्जिद में भी जाना था, ज़ाहिर बात है उनके भी अब्बू की डेथ हुई थी। तो मुझसे ऐसी तकलीफ़ तो कोई भी नहीं इस चीज़ को समझ सकता, क्योंकि जो बाप दुनिया से जा चुके थे। तो मैंने उधर मस्जिद में जाना था, पढ़ना था, तो मैंने कहा चले जी अब मैं जल्दी से ये देगी पुलाव और साथ में जरदा ही बना लेती हूँ। और दूसरे दिन फिर मैंने गोभी गोश्त बनाया था और मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि आपके कोई दोस्त हैं तो आपने उनको खाना खिलाना है। तो मैंने अच्छा सा गोभी गोश्त बनाया था, इंशाल्लाह वो आने वाले दिनों में वीडियो ऐड करती हूँ। और साथ में रोटी ये वो सारा कुछ डाल के ना आपने अपने दोस्तों को वो खाना खिला देना है, तो मेरे अब्बू को बड़ी खुशी होगी। तो ये देखें जी, बस देगी पुलाव बनिया, वही पुलाव है, प्याज है, थोम अदरक है, खड़े मसाले है, गोश्त है, चिकन मैंने डाला है, साथ में पानी चावल सारा कुछ डाल के वही देगी पुलाव बनाती हूँ। क्योंकि मुझे अब वो उसमें प्रैक्टिस हो गई है, तो फिर मैं कोई बिरयानी, टाइम भी कम था तो बस वो जल्दी, ये ज़रा जल्दी खाना पक जाता है। और मेरे अब्बू को ना जरदे में इतने ज़्यादा ड्राई फ्रूट पसंद थे ना, कहते थे हर किस्म के ड्राई फ्रूट ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड कर दो, और गुलाब जामुन भी ऐड, वो जो होते हैं जी रसगुल्ले, वो भी ऐड करो। तो बस अब मैंने जो मेरे पास अवेलेबल था उसमें मैंने सारा कुछ बनाया और इतनी खुशी मिल रही थी ना, इतना कोई दिल ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾबिल ਸਮਝਿਆ और अल्लाह ताला ने इतना नवाजा कि मैं अपने अब्बू दा हर साल ख़त्म दिलानी हाँ, अपने हाथ ना दिलानी हाँ। अल्लाह ताला मैनू इसी तरह ही तौफीक दे, आमीन सुम आमीन। तो चलो जी, नाल ही मैं अपने हस्बैंड ਨੂੰ कह के ना फ्रैश सीख कबाब मंगवाए ने, क्योंकि मेरे अब्बू ਨੂੰ गोश्त तो बनिया हुई चीज़ां ना बहुत ज़्यादा पसंद होंदियां सी। कहंदे ने जिस दिन उन्हां दा सालाना दिन होवे, मसलन कि जिस दिन उन्हां दी वफात होई होई है, ਉਹ ਖਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ पहुँचती है। ज़रूर, मुझे मेरा तो ईमान है और ईमान ते ही दुनिया कायम है। और यहाँ पे जी अब मैंने फ़्रूट अपनी बेटी को कह के ना एक प्लेटर रेडी करवाया था। मैंने कहा था कट नहीं करने हैं क्योंकि इसके बाद मुझे मस्जिद जाना था पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा ऐसी तरह ही साबित रख लेते हैं, जो जो मेरे अब्बू ਨੂੰ फ्रूट पसंद होते हैं ना, सारे विच फ्रूट मैं ऐड किए ने। अब जी डालते हैं अब ख़त्म के लिए चीज़ें, ख़त्म पड़ते हैं। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सिस्टर तुसी ये चॉपिंग बोर्ड रख के पतीले इत्थे क्यों रख लेंदे हो ज़मीन ते, चूल्हे ते क्यों नहीं रखते? क्योंकि चूल्हे मुझे लगता है ऊंचे हैं थोड़े से, और चूल्हे जो मेरे इस किचन के हैं ना, ये चूल्हा बिल्कुल छोटा, एक ही पतीला पूरा आता है, फिर मुझे दूसरी जगह रखना पड़ता है। तो फिर मैं आसानी दे नाल इन्हां नूं इत्थे फ्लोर ते रख लैनी है, क्योंकि तुहाडी भैन पूरी देसी है और देसी माहौल मैं दुनिया के किसी भी मर्जी कोने च नहीं छोड़ सकती हाँ। और नेचर और देसी माहौल के करीब रहना मैनू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस फिर तुहाडी भैन ऐसा ही जुगाड़ लांदी है, देसी तरीके नाल ही हर काम करदी है। तो यह देखो जी, पुलाव बड़ा ही टेस्टी बनया, टेस्ट बिल्कुल नहीं किया क्योंकि मैं कैसी नहीं जी, बिल्कुल झूठा नहीं करना। चेक करके नमक मिर्च नूं मैं अंदाजे से सब कुछ डालती हूँ। सिर्फ यहाँ पे जी चावलों का ते पानी का हिसाब रखना पैंदा है। जितना चिकन मैं लेती हूँ ना, मैं उस हिसाब से ही इसमें चावल डालती हूँ और पानी डालती हूँ। पानी तो सारी गल चावल के हिसाब नहीं डलता है। और अब मुझे प्रैक्टिस हो गई है ना, तो उन चावल ख़राब कोई नहीं जो होंगे। ए देख लो तुहाडे सामने कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं ना, देग चो निकले ने। वाकई अज देग पक्की सी, मैंने खुद ही घर में बनाती हूँ। आपने तो कितनी दफ़ा ही मेरे व्लॉग देख लेते हैं। तो चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह करके तो उन दुआ पढ़ते हैं, ख़त्म पढ़ते हैं। मेरे हस्बैंड ने ख़त्म पढ़ा और फिर हम लोग अपने नेबर्स में सब में बांटेंगे और मुझे एक दिली तसल्ली सुकून हो जाएगा। आप सब ने मेरे अब्बू को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखना है। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, आला मकाम में
आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे जी पक रही है चाय, कड़क वाली ज़बरदस्त किस्म दी कड़क चाय पक रही है। सारा मैंने काम ख़त्म कर लिया था, अब कड़क चाय बनेगी। और उसके बाद जी मैंने मस्जिद से आके ना, फिर मैं काम बीच में ही छोड़ गई थी। मस्जिद से आके फिर मैंने सारा घर क्लीन किया, बगल के किचन ही क्लीन करने वाला था क्योंकि मैं सारे काम छोड़ गई थी और किचन मैंने क्लीन करना था। और रात को किचन क्लीन मैं करके ही बेडरूम में जाती हूँ। मैं कभी भी इसको इस तरह से छोड़ के नहीं जाती हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ पूरे घर ਨੂੰ क्लीन करके ते ही तुसी तसल्ली ना बैठना। और खाना भी मैं तब तक नहीं खाती जब तक मेरा पूरा घर क्लीन ना हो। बस एक दिमाग 'ਚ टिक टिक चलती रहती है। और घर को क्लीन और साफ़ रखना एक औरत का ही होता है और कोई वो उस अपने घर में नौकरानी कोई नहीं होती है। उस घर दी ना रानी राज कर रही होती है। तो इस वास्ते कोई नहीं होता कि तुसी काम क्यों कर रहे हो, क्यों इतना काम किया है। मुझे इतना महसूस नहीं होता है। और मैंने अपने पूरे घर को इसी तरह रमज़ान होवे, ईद होवे, जो मर्जी होवे, इसी तरह से किचन को ऑर्गेनाइज़ करके तभी रात को सोना होता है। ये मेरी शुरू से आदत है, जब से मैं यूके में आई हूँ ना, इसी तरह से घर को पूरा, बल्कि किचन को क्या कहते हैं, बर्तन एक भी सिंक में रख के नहीं सोना चाहिए रात को, ये कहते हैं। तो बस जी बस वो जो बर्तन मैंने निकाले थे ना, वो सारे मैंने वॉश करके अब सेट करके रख दिए हैं। तो चलो जी ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਐਂਡ। ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਲਾइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलो जी अपना ख्याल रखना, मेरे अब्बू ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਅੱਜ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ याद रखना, आमीन ज़रूर कह देना। अगले अच्छे जे व्लॉग 'ਚ मिलांगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।